ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بی جان، ہمیں اپنے پاس سلا لیں۔ دلاور سائیں ہمیں صوفے پر سلاتے ہیں، ہماری کمر درد کرتی ہے۔ وہ معصومیت سے بولتی، نہیں جانتی تھی کہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر چکی تھی۔ جب بی جان نے اسے کمرے سے باہر بھیجا اور دلاور کو اپنے پاس بلا کر شدید غصہ کیا۔ کہاں بی جان کو پوتا چاہیے تھا اور دلاور زرمینے کو اپنے بستر پر جگہ دینے کو راضی نہیں تھا۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا تو زرمینے کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے بی جان سے؟ میں نے وارن کیا تھا نا، کمرے کی کوئی بات باہر نہ جائے۔ جبکہ دلاور کو غصے میں دیکھ کر وہ سہم گئی۔ میرے ساتھ بیڈ شیئر کرنا ہے نا تمہیں؟ آج ریڈی رہنا، میں بی جان کے سارے شکوے دور کر دوں گا۔ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اپنی طاقت کا منفی استعمال کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر یہ منفی طاقت اسے چین و سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ انتقام کے بعد انسان کے اندر لگی آگ تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، انسان کو چین اور سکون بھی مل جاتا ہے، مگر تب تک بڑی تباہی ہو چکی ہوتی ہے، جس کی زد میں وہ انسان بھی ضرور آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس شخص کے ساتھ۔ وہ اپنی کزن پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی، آسمان پر سورج اپنی مکمل تپش سے ہر چیز کو جلا رہا تھا، ہر طرف جھلسا دینے والی گرمی تھی۔ جب وسیم خانزادہ اپنی گاڑی میں شہر سے گاؤں واپس آ رہا تھا، گاؤں پہنچتے ہی راستے میں اچانک گاڑی خراب ہو گئی تو اسے رکنا پڑا۔ وہ گاڑی کا بونٹ کھولے مسئلہ چیک کرنے کی کوشش میں تھا۔ جب گاڑی ٹھیک ہوئی تو وہ بیٹھنے لگا، مگر اچانک دور اس کی نگاہ ایک لڑکی پر گئی جو گرمی میں پیدل کالج سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس قدر شدید گرمی میں اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، سر چکرانے لگا اور اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ اس وقت اس کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ مسلسل خراب ہوتی طبیعت کے باعث اسے زوردار چکر آیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وسیم خانزادہ اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ماموں کی بیٹی رباب تھی۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پہلی نگاہ میں وہ اپنا دل دے بیٹھا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وسیم کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی حالت گرمی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، سو وہ اسے جلدی سے اپنی اے سی والی گاڑی میں لایا، اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور ڈیش بورڈ سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھائی۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ پانی؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ اس وقت اسے صرف پانی کی طلب تھی۔ اس کا دماغ معاوف سا ہو رہا تھا۔ وسیم نے جلدی سے پانی کی بوتل اس کے ہونٹوں سے لگائی تو ایک ہی سانس میں اس نے آدھی بوتل پی لی۔ گہرے سانس لیتی اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھا تو چونک گئی۔ آپ کون؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تو وسیم نے اسے اپنا تعارف کرایا۔ میں وسیم خانزادہ ہوں، تمہاری پپھو ہنا کا بیٹا۔ وسیم کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈر گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے خاندان والے ہنا پپھو سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ اگر کوئی اسے ہنا پپھو کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیتا تو بہت مسئلہ ہو جاتا۔ وہ ڈر کر گاڑی سے اترنے لگی تو وسیم نے اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی کلائی تھام لی۔ رباب، کیا تم بھی اپنے گھر والوں کی طرح ہم سب کو ناپسند کرتی ہو؟ ہم لوگ برے نہیں ہیں، ابھی میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اگر ہم لوگ واقعی برے ہوتے تو میں تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ وسیم سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ رباب کے دل کی دھڑکنیں یکلخ تیز ہوئی تھیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ رباب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ نرم پڑ گئی۔ رباب، کبھی گھر آنا ہمارے، میری بہن زرمینے اور ماما تم سے مل کر خوش ہوں گی۔ وسیم نے اسے گھر آنے کی آفر کی تو رباب ایجاب میں سر ہلا گئی۔ میں جاؤں اب؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کہیں تمہاری طبیعت دوبارہ نہ خراب ہو جائے، گرمی بھی کافی ہے۔
وسیم نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے مزید مزاحمت نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے رباب کو حویلی سے پیچھے 2 گلیاں چھوڑ کر اتار دیا، کیونکہ وہ خود بھی یہ جانتا تھا اگر رباب کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ سارے راستے وہ رباب کے بارے میں سوچتا ہوا گیا تھا۔ رباب کو اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، مگر آج حقیقت میں اسے دیکھ کر وہ اس پر فدا ہو گیا۔ اس کے دل میں محبت کا بیج لگ چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بیج ایک طاقتور درخت بننے کے بعد کتنی بڑی تباہی پھیلانے والا تھا۔ بی جان اس وقت حویلی کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے گھماتے ہوئے وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ رباب بھی آ چکی تھی۔ اسے روزانہ 1:30 بجے کالج سے چھٹی ہوتی تھی۔ ڈرائیور اسے روز چھوڑنے اور لینے جاتا تھا، مگر آج ڈرائیور کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، اسی لیے وہ اکیلی گھر آ گئی۔ رباب، تیرا چہرہ اتنا سرخ کیوں پڑ رہا ہے؟ بی جان نے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا۔ البتہ وسیم والا قصہ اس نے بی جان کو نہیں بتایا تھا۔ تیری طبیعت خراب تھی تو کسی استانی سے ورکشاپ فون کروا دیتی، دلاور یا زحان میں سے تجھے کوئی لینے آ جاتا، وہ تفکر سے کہنے لگی۔ بس بی جان، میں نے سوچا سب ورکشاپ پر مصروف ہوں گے، پیدل چلی جاتی ہوں، شاید بہتر محسوس کروں، اس لیے میں جلدی سے کالج سے نکل آئی، لیکن آدھے راستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ رباب پنکھے کے نیچے کھڑی ہو کر بولی۔ اسے بہت گرمی لگ رہی تھی۔ بی جان نے اس کی فکر میں ملازمہ کو حکم دیا کہ وہ رباب کے لیے ٹھنڈی لسی بنا کر لائے۔ رباب اپنا یونیفارم تبدیل کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں وسیم کا چہرہ آیا تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وسیم نے آج اس کی جان بچائی تھی۔ پہلے گاؤں میں بھی اسی کنڈیشن کی وجہ سے ایک لڑکی کی جان چلی گئی تھی۔ اگر بر وقت وسیم اسے اے سی والی گاڑی میں بٹھا کر ٹھنڈے پانی سے اس کے چہرے پر چھینٹے نہ مارتا اور اسے پانی نہ پلاتا تو شاید وہ اب تک مر چکی ہوتی۔ سوچتے ہی اسے جھرجھری آنے لگی۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور لاؤنج میں آ کر لسی پینے لگی۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات بہت یادگار ثابت ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ دونوں اس دن کو یاد کرتے جو چہرے پر موہوم سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ وسیم کا دل بے چین تھا کہ وہ دوبارہ رباب سے ملے، اسے دیکھے، اس سے ملاقات کرے، اس سے بات کرے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل کو سنبھالا ہوا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اس سے ملنے اس کی حویلی چلا جائے، پر وہ جانتا تھا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اس کی دید کے انتظار میں تھا اور بالآخر اس کے بے قرار دل کو اس دن چین نصیب ہوا جب اس نے کالج سے آتے ہوئے رباب کو دیکھا۔ شاید آج بھی اس کا ڈرائیور اسے لینے نہیں آیا تھا۔ وہ فوری اس تک پہنچا۔ رباب بھی اسے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگی۔ ابھی بھی وہ اس سے کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک جھجک تھی اور خوف بھی تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ جھجک اور خوف کی دیوار دور ہو گئی اور وہ وسیم سے ملنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ ان کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ ہوا اور پھر نہ ختم ہونے والی گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ رباب کا کالج ختم ہو چکا تھا، اس کا BA کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ وسیم اس سے اظہار محبت کر چکا تھا۔ وہ کمزور نازک سی لڑکی اپنے چھوٹے سے دل میں اس کی محبت کا سمندر لیے بیٹھی تھی۔ وسیم کی محبت نے اسے ایک نئی دنیا کی پہچان کروائی تھی۔ محبت کی اس نئی دنیا میں وہ خود کو کسی ریاست کی شہزادی کی طرح تصور کر رہی تھی۔ جتنا وہ خوش تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں اتنی ہی اذیت اس کے لیے لکھی تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا جب اس کے بابا سائی نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ ان کے ہاں جلدی شادی کا ہی رواج تھا۔ ایک رات جب سب لوگ لاؤنج میں رات کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے موجود تھے، تب بابا سائی نے یہ اعلان کیا کہ وہ رباب کی شادی زحان سے طے کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی رباب دنگ رہ گئی۔ سب لوگوں کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی سوائے رباب کے۔ اس کے گلے میں نوالہ اٹک گیا۔
आंखों में पानी जमा होने लगा। वो खांसने लगी थी। मुलाजमा ने उसे पानी का गिलास दिया था। ज़ुहान को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो रुबाब को पसंद करता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो लोग आपस में शादी की तारीख के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि रुबाब का दिल किसी ने मुट्ठी में भेंच लिया था। उसकी ज़ात इतनी बेमायनी थी कि किसी ने उससे पूछा तक नहीं था कि क्या वो इस रिश्ते के लिए राज़ी है या नहीं, उसकी अपनी कोई चॉइस है या नहीं। वो खुद तो पढ़ी लिखी थी, अपने हुकूक से आगाह थी, मगर चाह कर भी वो अपने हक के लिए बोल नहीं पाई, क्योंकि हवेली में हर फैसला मर्द करते थे। औरत ज़ात को कुछ बोलने या अपनी राय पेश करने का कोई हक नहीं था। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया। बमुश्किल उसने खाना अपने हलक से उतारा और अपने कमरे में चली आई। आंसू साफ करते हुए उसने मैसेज पर वसीम को अपने रिश्ते के हवाले से आगाह किया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और वसीम जल्द अज जल्द कोई फैसला लेना चाहता था। मामा, चले हम हवेली चलते हैं और रुबाब का हाथ मांग लेते हैं। आई एम श्योर मामू शायद हमारे साथ सुलह कर लेंगे। बीजान भी हमारा साथ देंगी। वसीम बेचैनी से बोला, मगर हिना बेगम परेशान हो गई। वो हवेली के लोगों के बारे में अच्छी तरह जानती थी। आखिर उन्होंने अपना बचपन और जवानी के इतने साल वहां गुजारे थे। जो कुछ हवेली के मर्दों ने उनके साथ किया था वो भुला नहीं पा रही थी। सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर वो उसके साथ हवेली रुबाब का रिश्ता मांगने चली गई। उन लोगों ने रुबाब और वसीम की मोहब्बत या राब्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। हवेली के मर्दों की जानिब से उन्हें सख्ती से इनकार का सामना करना पड़ा। हवेली वालों ने साफ साफ कह दिया था कि हिना बेगम या उनका बेटा वापस कभी इस हवेली में ना आए। और हाँ, याद रखना वसीम, आइंदा रुबाब के बारे में ऐसा सोचा भी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ज़ुहान ने वसीम को आगाह किया था। उसकी धमकी सुनकर ज़ुहान के तन बदन में आग लग गई। ज़ुहान और वसीम के दरमियान हमेशा एक जंग रही थी। रुबाब बहुत परेशान थी कि इस सूरत हाल में क्या करे। अपने घर वालों के सामने वो वसीम से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती थी। जानती थी ऐसा करना खुद को मारने के मुतरादिफ था। वो लोग उसे जिंदा दफनाने में देर नहीं करते। हवेली के मर्दों में गैरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वो इस बात को भी अपनी गैरत के खिलाफ समझते थे कि औरत उनके आगे कुछ बोले या किसी से अपनी पसंदीदगी का इजहार करे। उसकी पुप्पो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपनी पसंद की शादी पर उन्हें घर से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। हवेली के लोग उन्हें कत्ल करने के दर पे थे। बड़ी मुश्किल से बीजान ने उन्हें वास्ते देकर रोका। यही वजह थी कि आज भी हिना बेगम का हवेली में दाखिला और किसी से मिलना जुलना ख़त्म था। मगर अपनी बेटी हिना बेगम की मोहब्बत में बीजान कभी कभार छुपकर अपनी बेटी और उनके बच्चों से मिल लेती थी। उन्हें रुबाब और वसीम के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर हवेली के मर्दों के आगे वो भी बेबस थी। मुझे तुमसे मिलना है रुबाब। वसीम के कहने पर वो अगले ही दिन घर वालों से छुपकर उससे मिलने चली आई। वसीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ रुबाब, मैं जान गया हूँ हवेली के लोग बहुत जालिम हैं। ये हम दोनों को अलग कर देंगे, इसलिए हम भागकर शादी कर लेंगे, शहर चले जाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना? वसीम की जज्बाती बातें सुनकर रुबाब दंग रह गई। उसने वसीम की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाया। वसीम, ये आप क्या कह रहे हैं? याद है ना सबने पुप्पो के साथ क्या किया? जब उन्होंने भागकर शादी की तो उनको हवेली से बेदखल कर दिया गया। आज तक वो उन्हें माफ़ नहीं कर पाए और आप चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सबको अपना दुश्मन बना लूं, ताकि मुझसे हर रिश्ता और राब्ता ताल्लुक ख़त्म कर दिया जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो साफ इनकार करते हुए बोली थी। वसीम ने उसे शानों से पकड़ा और झंझोड़ते हुए पूछा, फिर क्या करोगी तुम? मेरी मोहब्बत दिल में रखते हुए उस ज़ुहान से शादी करोगी? ये सुनते ही वो आंखों में आंसू लिए अज़बात में सर हिला गई। वसीम दंग रह गया था। उसकी गिरफ्त रुबाब के शानों पर हल्की पड़ गई।
रुबाब आंसू पोंछती अब वहां से भागते हुए जा रही थी और वो धुंधली होती आंखों से उसे जाता देख रहा था। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा, आखिरी दम तक कोशिश करूंगा, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, उसने जुनून में अज़्म किया था। बार बार उसने हवेली के चक्कर लगाए थे और रुबाब से शादी की बात की थी, लेकिन उसे हमेशा धुतकार दिया गया। ज़ुहान ने 2 बार उसे बुरी तरह मारा, लेकिन वो सिर्फ रुबाब की खातिर खामोश था। उसने रुबाब की खातिर बहुत जिल्लत उठाई थी और बहुत सी धमकियों का सामना किया था। रुबाब खामोशी से आंसू पीती सब देखती रहती, मगर मजाल था उसने कभी एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला हो। वो इस घर के मर्दों से बहुत डरती थी। उसकी मोहब्बत हार गई और वो खौफ जीत गया था। कल उसका निकाह था। वो फूट फूट कर रो रही थी कि काश उसकी किस्मत बदल जाए और उसकी शादी वसीम से हो जाए। वसीम का बस नहीं चल रहा था वो ज़ुहान को जिंदा दफन कर डाले। ज़ुहान उसका हमेशा से दुश्मन रहा था। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ भी एक दूसरे से हसद करते रहते। और अब जब वो उसकी मोहब्बत को हासिल कर रहा था, तब वसीम के अंदर एक आग सी लगी हुई थी, इंतकाम की आग। आज उसका निकाह था और वसीम बेचैनी से टहल रहा था। उसका वर्कशॉप पर भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर जाने के लिए वर्कशॉप से निकल पड़ा, मगर रास्ते में ज़ुहान से उसका टकराव हो गया। वो इस पर हंस रहा था तो आखिर रुबाब को भी मैंने हासिल कर लिया। वैसे एक बात बताओ, जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं तुम्हें भी क्यों आ जाती हैं? लेकिन एक बात है कि हर बार बाजी मैं ही ले जाता हूं, ज़ुहान मगरूर लहजे में बोला। पहले भी उनके दरमियान काफ़ी कारोबारी मसाइल और मुकाबले रहे थे, इसलिए अब ज़ुहान उसका मजाक उड़ा रहा था। इस बार तुम हार गए हो, क्योंकि रुबाब मुझसे मोहब्बत करती है, तुमसे नहीं। वसीम ने जज्बात में आकर उसे नीचा दिखाने के लिए सच बोल गया और ये सब ज़ुहान की गैरत जगा गया था। हमेशा की तरह उसने वसीम पर हाथ उठाने की कोशिश की और यूं उन दोनों के दरमियान झगड़ा बढ़ता गया। हाथापाई हुई और नौबत यहां तक पहुंच गई कि वसीम उससे इंतकाम लेने के लिए इस हद तक जा पहुंचा कि उसने फैसला कर लिया कि वो ज़ुहान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस इंतकाम की आग में वो बुरी तरह जल रहा था और आज हर सूरत इस आग को वो ठंडा करना चाहता था। उसने पूरी कुव्वत से ज़ुहान को धक्का दिया। उसका सर दीवार से जाकर लगा और यूं उसके सर के पिछले हिस्से और नाक से शिद्दत से खून बहने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। उसने अपनी जान दे दी। वसीम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो फटी फटी निगाहों से उसके मुर्दा वजूद को देख रहा था। आसपास लोग जमा हो चुके थे। वसीम का नफ्स जो उसे ज़ुहान को मारने पर उकसा रहा था, जब उसने ज़ुहान को मार दिया तो उसे अब होश आया। यूं लग रहा था जैसे गुस्से की हालत में किसी नादीदा कुव्वत ने उससे ये सब कुछ करवाया हो। जो ही उसके सर से जुनून उतर गया, इंतकाम की आग ठंडी हो गई। आग से उठते शोले मध्यम हो गए तो उसे सब साफ दिखाई देने लगा कि इस इंतकाम की आग ने उससे कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है। हमेशा ऐसा ही होता है, गुस्से में इंसान जो कुछ करता है उसके बाद उसे पछतावा ज़रूर होता है। वसीम ने कांपते हुए अपना सर थामा और वहां से भागने लगा। जो ही घर पहुंचा उसने घर के दरवाजे बंद कर दिए और बाबा के पास भागा। बाबा, मुझसे वो ज़ुहान, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसे धक्का दिया और बाबा वो मर गया। अब क्या होगा बाबा? जुनैद साहब इस वक्त घर में मौजूद थे। वसीम हवास बाख्तगी से उनके पास आया और लक्ष्य ज़दा लहजे में उन्हें बताया। यह सुनकर जुनैद साहब के भी होश उड़ गए। उनकी छोटी बहन ज़रमीने ने डर कर लबों पर हाथ रख लिए। वसीम, ये क्या कर दिया तुमने? हिना बेगम ने अपना सर थाम लिया। वो लोग जानते थे अब इसका अंजाम क्या होने वाला था। इस गांव में वन्नी की रस्म आम थी और मकतूल के घर वाले वन्नी का मुतालबा करते थे। हिना बेगम ने खौफ से अपनी बेटी को गले से लगाया, क्योंकि वो जानती थी कि दूसरे खानदान के किसी फर्द को कत्ल करने का अंजाम क्या होता था।
آج کا دن سب پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ دشمنی کی بنا پر وسیم نے اپنے ماموں کے بیٹے زوہان کو قتل کر دیا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ رباب کے لیے ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہوئی تھی اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جان کی بازی ہار گیا۔ زوہان کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد عینی شاہدین کی موجودگی میں پنچایت لگ چکی تھی اور وہاں حویلی کے لوگ اور حنا بیگم کے گھر والے بیٹھے تھے۔ پنچایت میں دونوں فریقین کی بات سنی گئی اور پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ونی کی رسم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حنا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بات کا انہیں خدشہ تھا ویسا ہی ہوا۔ زرمینیں اس وقت گھر پر موجود تھی۔ حنا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زوہان کے والد اکبر صاحب نے غصے سے وسیم کو دیکھا۔ وسیم خاموش بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس بے غیرت انسان نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ میں چاہتا ہوں اس کی بہن کو میرے دوسرے بھائی کے بیٹے دلاور کے ساتھ ونی کیا جائے۔ یہ سنتے ہی حنا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ ان سے دیت وصول کر لی جائے، مگر اس ظالمانہ رسم کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ مگر اکبر ماموں نے حقارت سے اپنی بہن کو دیکھا اور ان کی بات رد کر دی۔ یہ طے پایا کہ 2 دن کے اندر اندر زرمینے کا دلاور سے نکاح کروایا جائے گا۔ بی جان بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب غلط تھا۔ زرمینے بہت معصوم اور کم عمر تھی، مگر انہیں معلوم تھا ان کا فیصلہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ پنچایت برخاست ہوئی اور سب لوگ گھر آ چکے تھے۔ دلاور، خدا کے واسطے اس ظلم کو روک لے، اس میں زرمینے بچی کا کیا قصور ہے؟ بی جان نے اکیلے میں اس سے پوچھا۔ دلاور خود بھی اپنے دشمنوں اور بھائی جیسے کزن کے قاتل کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب مجبوری تھی۔ تو وعدہ کر، تو زرمینے سے شادی کر کے اس پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، تو اسے اپنی حقیقی بیوی مان کر اسے عزت سے گھر میں رکھے گا، وعدہ کر۔ بی جان نے روتے ہوئے کہا تھا۔ دلاور خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر یہ کہتے وہاں سے چلا گیا کہ میرے اندر اتنا ظرف نہیں ہے بی جان کہ اپنے بھائی جیسے کزن کے قاتل کی بہن کو عزت دوں۔ بی جان نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس حویلی کے مردوں سے رحم کی توقع بیکار تھی۔ جب زرمینے کو پتا چلا کہ اس کا 2 دن کے اندر دلاور سے نکاح ہے اور وہ ونی ہو کر حویلی جا رہی ہے، اپنے بھائی کا کیا وہ بھگتے گی، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ روتے ہوئے وسیم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بھائی پلیز یہ سب روک دیں، یہ ظلم ہے۔ وہ ڈر کر رو رہی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ ونی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ سسرال کیا سلوک کرتا ہے۔ وسیم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ زرمینے، میں چاہتا تو یہ سب روک سکتا تھا، مگر میرا منصوبہ کچھ اور ہے۔ میں چاہتا ہوں تم وہاں جاؤ، دلاور سے شادی کرو اور اس دشمنی کو ختم کرو، تاکہ پھر میں رباب سے شادی کر لوں۔ وسیم کی باتیں سن کر زرمینے اور حنا بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہے ہو وسیم؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری جس نے تمہیں اتنا سنگ دل بنا دیا ہے؟ بہن کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں؟ حنا بیگم نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، مگر وسیم کا چہرہ اس وقت کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ وہ واقعی بے رحم بن چکا تھا۔ رباب کے عشق اور انتقام نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا۔ زرمینے کو دلہن بنا دیا گیا تھا۔ اس کا دلاور کے ساتھ نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا وقت بھی آ پہنچا۔ حنا بیگم کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کاش ماما ہم یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئے ہوتے۔ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے وسیم بھائی کو۔ وہ اذیت سے بول رہی تھی۔ حویلی کے لوگ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے رخصت ہوتے ہی حنا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جنید صاحب نے اپنی بیٹی کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر حویلی کے لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا۔
इस लिए पंचायत ने उन्हीं का साथ दिया। रुबाब इस वक्त सदमे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उसे पता चला था कि वसीम ने जोहान को मार डाला है, तब से वो शॉक में थी। उसने डर के मारे अपना फ़ोन ही बंद कर दिया कि अगर वसीम के हवाले से उसके घर वालों को कुछ पता चला तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। जब ज़रमीने हवेली आई तो सबने उसे इश्ताल भरी नज़रों से देखा, सिवाय बीजान और रुबाब के। जोहान की अम्मी समीना बेगम उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। जो ही उन्होंने उसे थप्पड़ मारा, वो नाजुक सी लड़की ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। रुबाब होश में आई थी और भागकर उसने ताई को रोका। ताई, प्लीज़ ऐसा ना करें, ये बहुत छोटी है, इसमें ज़रमीने का कोई कसूर नहीं। वो उनसे इल्तिजा कर रही थी। बीजान भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर ताई ने ज़रमीने पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो तकलीफ से नढाल हो गई। रुबाब, जा ज़रमीने को अपने कमरे में ले जा। दादी की बात सुनकर रुबाब ने उसे ज़मीन से उठाया और अपने साथ ले गई। ताई इस वक्त शदीद गुस्से में थी। दिलावर निकाह के बाद वर्कशॉप चला गया, क्योंकि उसने शादी सिर्फ रस्म के लिए की थी, वरना उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ज़रमीने को रुबाब ने दूध का ग्लास थमाया था। वो नम आंखों से रुबाब को देखने लगी, जिससे उसका भाई वसीम बेतहाशा मोहब्बत करता था। सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर भाई ने हमें कुर्बान कर दिया रुबाब। ज़रमीने की बात सुनकर रुबाब दंग रह गई। फिर ज़रमीने ने रोते हुए उसे वसीम के मंसूबे के बारे में बताया। रुबाब अपनी इस छोटी सी भाभी की बातें सुनकर शॉक्ड रह गई। रात को दिलावर घर आया तो उसे मालूम हुआ ज़रमीने, उसकी बीवी, उसकी बहन रुबाब के कमरे में है। ताई और अम्मी जान ने काफ़ी फोर्स किया था कि वो ज़रमीने के साथ सफाकियत भरा सलूक करे। अलबत्ता बीजान ने फिर से अकेले में उसे समझाया था कि वो ज़रमीने के साथ नरमी से पेश आए। जब वो रुबाब के कमरे में ज़रमीने को लेने आया तो हैरान रह गया। ज़रमीने इस वक्त आम सी शलवार कमीज़ में मलबूस थी। उसने उरूसी लिबास तब्दील कर लिया था। चेहरा किसी भी किस्म के मेकअप से पाक था। वो उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ज़रमीने वाकई कोई छोटी बच्ची लग रही थी। मेरे कमरे में जाओ ज़रमीने, उसने रोबदार लहजे में कहा तो वो डरती हुई उठ खड़ी हुई। फिर दिलावर के बताए हुए कमरे में चली गई। रुबाब ने अपने भाई के सर तासुरात से भरे चेहरे को देखा। रुबाब बहुत रहमदिल थी। वो उठकर दिलावर के पास आई। भाई, ज़रमीने बहुत छोटी और मासूम है। जो कुछ जोहान के साथ हुआ उसमें ज़रमीने का कोई कसूर नहीं। एक पल के लिए सोचें, अगर ज़रमीने की जगह मैं होती तो कैसा महसूस होता आपको? क्या आपको दुख नहीं होता अगर कोई आपकी बहन को बीवी बनाकर उसके साथ वहशियाना सलूक करता? रुबाब की बात सुनकर वो लाजवाब हो गया। शिकस्ता कदम लिए वो अपने कमरे में वापस आया। ये बीजान और उसकी बहन की बातों का ही असर था कि वो चाहकर भी ज़रमीने से बदला नहीं ले सका। मगर ज़रमीने को अपने बेड पर बैठा देखकर उसे गुस्सा ज़रूर आया। वहाँ सोफे पर जाकर सो जाओ, और हाँ, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करूं तो कभी मेरे रास्ते में मत आना। आज से तुम सोफे पर सोगी। इस कमरे की बात इस कमरे में रहनी चाहिए, बाहर ना निकले, समझ आया? वो उसे देखता हुआ तेज लहजे में बोला तो सहम कर ज़रमीने ने जल्दी से अज़बात में सर हिलाया। जो ही दिलावर ने कमरे की लाइट बंद की तो वो डरते हुए सोफे पर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद दिलावर सो चुका था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। अपनी माँ को याद करते हुए वो सिसकियों से रो रही थी। सोफे पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सारी रात जागती रही। सुबह सवेरे ही दिलावर उठ गया था। उसने एक सख्त नज़र सोई हुई ज़रमीने पर डाली और जॉगिंग पर चला गया। वापसी पर उसने नाश्ता किया और फिर वर्कशॉप चला गया। घर के सभी मर्द वर्कशॉप चले गए थे। अकबर ताया ने दिलावर को एक बार फिर याद दिलाया कि उसे ज़रमीने के साथ कैसा सलूक करना है। वो महज ईजाब में सर हिला गया। ज़रमीने की नींद में खलल उस वक्त पड़ा जब मुलाजमा उसे जगाने आई और कहा,
तुम्हें समीना बीबी और फौजिया बीबी बुला रही हैं। अपनी सास और जोहान की अम्मी का बुलावा सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो डरते हुए लाउंज में आई तो समीना बेगम ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो शॉक्ड होकर गाल पर हाथ रखे उन्हें देखने लगी। तू इस घर की नौकर है, समझ आया तुझे? तेरी हैसियत यहां एक नौकरानी की है। चल जल्दी झाड़ू पकड़ और पूरे घर की सफाई कर। वो उसके नजदीक झाड़ू फेंकते हुए धाड़ते हुए बोली तो वो डर कर उसने झाड़ू उठा लिया। बीजान और रुबाब उस वक्त सो रही थी। ज़मीने को अपनी सास और जोहान की अम्मी से बहुत खौफ आ रहा था, इसलिए जैसा उन्होंने कहा उसने रोते हुए अमल किया। जहां वो गलती करती उसकी सास और समीना उसे मारना शुरू हो जाती। बड़ी मुश्किलों से उस अकेली जान ने इतनी बड़ी हवेली की सफाई की थी। उसके हाथ पैर और जिस्म दर्द करने लगा था। चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। जब भी जान उठी तो उन दोनों ने उसे मारना तर्क कर दिया। ज़मीने रोती हुई कमरे में आ गई। कल से उसने खाना नहीं खाया था, भूख से जान निकल रही थी। रुबाब बीजान के कहने पर ज़मीने को नाश्ता देने उसके कमरे में जा रही थी, मगर फौजिया बेगम ने उससे खाना छीन लिया और उसे सख्ती से मना किया कि वो ज़मीने से दूर रहे और उस पर किसी किस्म का रहम ना करे। सुबह से शाम हो चुकी थी। भूख से ज़मीने का पेट दर्द हो रहा था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था। वो बेड पर आकर बैठ गई। सर घूम रहा था, नज़र धुंधला रही थी। अचानक उसे भूख की शिद्दत से जोरदार चक्कर आया और वो वहीं बेड पर बेहोश हो गई। रुबाब, ज़मीने का ख्याल रखना। रुबाब ने अपना फ़ोन ऑन किया तो उसे वसीम का मैसेज नज़र आया। उसे शदीद गुस्सा आया था। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया, मुझे बहुत नफ़रत हो रही है आपसे वसीम। पहले आपने जोहान की जान ली और फिर अपनी बहन को कुर्बान कर दिया। आपकी मोहब्बत बहुत खुदगर्ज है। मैं ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकती जो संग दिल हो, लिहाजा मुझे भूल जाए। आज के बाद मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। व्हाट्सएप पर वसीम को मैसेज करने के बाद उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जो ही वसीम ने उसका मैसेज पढ़ा तो वो तड़प उठा था। वो अजियत से हवेली जाने का सोचने लगा ताकि रुबाब को मना ले, मगर हिना बेगम उसके रास्ते में आ गई। मुझे जाने दे मामा, मैं रुबाब से और उसके घर वालों से हर सूरत बात करके रहूंगा। वो जिद्दी लहजे में बोला तो हिना बेगम ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो वो होश में आया। कहीं नहीं जाओगे तुम। पहले तुमने एक शख्स का नाहक कत्ल किया, फिर अपनी बहन को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया और अब तुम रुबाब की जिंदगी खराब करना चाहते हो। वो चीख कर पूछ रही थी और वसीम फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहा था। वसीम को अपने अंदर एक आग लगती महसूस हुई। जब दिलावर शाम में घर आया और उसने ज़मीने को बेड पर होशो हवास से बेगाना देखा तो उसे तशवीश हुई। इसने उसे झंझोड़ा तो वो ना उठी तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो सर थामती हुई उठकर बैठ गई। मना किया था ना तुम्हें कि मेरे बेड से दूर रहना, वो तलखी से उससे कह रहा था। ज़मीने ने बताया कि भूख की वजह से वो बेहोश हो गई थी। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। जाओ यहां से, मेरी नज़रों से दूर रहो तो बेहतर है। वो गुस्से से बोला और उसे बेड से उठाकर सोफे पर धक्का दिया। शायद वो घर वालों की बातों में आ गया था कि इस ज़मीने पर सिर्फ जुल्म करना है। खुद तो वो खाना खा कर आया था, मगर ज़मीने से उसने झूठे मुंह भी नहीं पूछा। जब वो सो गया तो रुबाब चुपके से कमरे में आकर ज़मीने को खाना दे गई। उसने जल्दी से खाना ख़त्म किया और बर्तन छुपा दिए। जहां इस घर में उसके शौहर समेत सब लोग उस पर जुल्म कर रहे थे, वहीं रुबाब और बीजान उससे मोहब्बत भरा सलूक कर रही थी। रुबाब ने चुपके से उसकी फ़ोन पर बात उसकी माँ से करवा दी थी। ज़मीने का ताल्लुक तो अपने मैके से ख़त्म कर दिया गया था। उसे अपने घर वालों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। आज ज़मीने की शादी को 1 माह हो गया था और इस 1 माह में उसने बहुत जुल्म सहे थे। बीजान दिलावर को बार बार कह रही थी
उन्हें प्यारा सा पोता चाहिए। ये सुनकर दिलावर के तन बदन में आग लग गई। ये सब बीजान इसलिए कह रही थी ताकि वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। वो जानती थी ज़रमीने के लिए उसके दिल में कोई मोहब्बत ना थी। सोफे पर सोकर ज़रमीने की कमर दुखने लगी थी। आज रात जब वो सोने से पहले बीजान को चाय देने कमरे में आई तो उसकी कमर में दर्द होने लगी। उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया। क्या हुआ धीरानी? बीजान ने उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखते पूछा। क्या बताएं हम आपको? बस बीजान, हमें अपने पास सुला लें, नरम से बेड पर। दिलावर साईं हमें सोफे पर सुलाते हैं। हमारी कमर दर्द करती है, अभी भी शदीद दर्द उठा है। घर में अम्मी के पास हम बेड पर सोते थे, सोफे पर सोने की आदत नहीं है ना हमको। वो मासूमियत से बोलती, नहीं जानती थी कि अपने साथ क्या जुल्म कर चुकी थी। दिलावर ने उसे मना किया था वो किसी को अपने और दिलावर के दरमियान किसी तल्ख बात के बारे में नहीं बताएगी। ज़रमीने की बात सुनकर बीजान के माथे पर बल पड़ गए। जब बीजान ने उसे कमरे से बाहर भेजा और दिलावर को अपने पास बुलाकर शदीद गुस्सा किया तो दिलावर का खून खौल उठा। कहाँ बीजान को पोता चाहिए था और दिलावर ज़रमीने को अपने बिस्तर पर जगह देने को राजी नहीं था। यह सोचकर बीजान को गुस्सा आया कि वो दिलावर और ज़रमीने के बीच रिश्ते को मजबूत बनाए और कहाँ वो उससे गैरों वाला सलूक कर रहा था। दिलावर, आज तुझसे मुझे बड़ी मायूसी हुई है। मैं तुझे सबसे अलग समझती थी, मगर तूने भी साबित कर दिया तू सब मर्दों जैसा जालिम है जो एक मासूम लड़की पर जुल्म करके अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। मर्दानगी औरत पर जुल्म करना नहीं होती, बल्कि औरत की इज्जत करना होती है। बीजान ने उसे काफी डांट दिया। ज़रमीने सोने के लिए सोफे पर लेटी थी तो वो गुस्से से कमरे में आया और ज़रमीने को बाजू से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। क्या बकवास की है तुमने बीजान से? मैंने वार्न किया था ना, कमरे की कोई बात बाहर ना जाए। वो दांत पीसते बोला, जबकि दिलावर को गुस्से में देखकर वो सहम गई। हमें माफ कर दे, हमारे मुंह से निकल गया था। वो हमें बेड पर सोने की आदत है तो सोफे पर सोने से कमर दुखती है, बस हमने यही बताया था बीजान को। वो सहम कर बोली, तुम्हें बेड पर सोने की आदत है और यहां बेड तो एक ही है। मेरे कमरे में मेरे साथ बेड शेयर करना है ना तुम्हें। आज रेडी रहना, मैं बीजान के सारे शिकवे दूर कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। वो अजीब से लहजे में बोला तो ज़रमीने हैरान रह गई। वो अल्लाह से दुआ करने लगी कि किसी तरह दिलावर उस पर गुस्सा करना छोड़ दे। उसी लम्हे लाउंज से शोर की आवाज़ें आईं तो वो गुस्सा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। ज़रमीने ने शुक्र का सांस लिया, मगर जब वो भी शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो दंग रह गई, क्योंकि बाहर उसका भाई वसीम मौजूद था जो ज़रमीने और रुबाब को आवाज़ दे रहा था। रुबाब, रुबाब। जब वसीम के मुंह से उन लोगों ने रुबाब का नाम सुना तो दंग रह गए। क्यों पीछे पड़े हो तुम अब तक मेरी बहन रुबाब के? हिम्मत कैसे की तुमने इस घर में आने की? दिलावर गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ते बोला, प्यार करता हूं मैं रुबाब से और वो भी मुझसे प्यार करती है। आप लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। क्यों नहीं करते रुबाब की मुझसे शादी? जब वो राजी है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? वो दिलावर की आंखों में आंखें डाले पूरे एतमाद से बोल रहा था। दिलावर की गैरत जाग उठी थी और उसने वसीम को मारना शुरू कर दिया था। वो बिना जवाबी हमले के खामोशी से मार खा रहा था। रुबाब को बुलाओ, रुबाब। दिलावर के बाद जमशेद साहब बुलंद आवाज में बोले थे। एक मुलाजमा रुबाब के कमरे में सीढ़ियां चढ़ती चली गई। ज़रमीने ने अपने भाई को इस हाल में देखा तो तड़प उठी और भागते हुए उसे बचाने दिलावर के रास्ते में आई, मगर दिलावर ने उसे धक्का दिया, जिसके बाद वो दूर जमीन पर जा गिरी। जमशेद साहब रुबाब को इसलिए बुला रहे थे ताकि वसीम की कही हुई बात की तस्दीक कर सके।
क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि वसीम यकतरफा मोहब्बत में इतना पागल हरगिज नहीं हो सकता। रुबाब जो सीढ़ियां उतरने लगी थी, जब उसने देखा अकबर साहब गुस्से में वसीम को मारने के लिए उस पर पिस्तौल तान चुके हैं, तो उसकी रूह फना हो गई। रुक जाएं ताया, वो चीख कर बोली और सीढ़ियों से तेजी से उतरने लगी। मगर चौथी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह सीढ़ियों से गिरती चली गई। उसका सर बुरी तरह सीढ़ियों से टकराया। वो बेहोश हो चुकी थी। रुबाब, वसीम तेजी से उसकी तरफ भागा था, मगर अकबर साहब ने गार्ड्स को बुलाकर उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। सब लोग रुबाब की तरफ बढ़े और गाड़ी निकालते उसे अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने आकर बताया कि सर के नाजुक हिस्से पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुकी है। उसे कब होश आएगा ये बात कंफर्म नहीं। ये सुनते ही सब लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। पहले जुहान की मौत और अब रुबाब की ये हालत, सब अपना सर थाम गए। दिलावर ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। जिस तरह रुबाब वसीम को बचाने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी, दिलावर को कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। वो गुस्से में घर आया और ज़मीने को बाजुओं से पकड़ा और झंझोड़ते हुए उससे पूछा, वसीम का रुबाब से क्या ताल्लुक है? क्यों वो इसके पीछे पड़ा है? ये सुनते ही ज़मीने डर गई और उसने सच बता दिया कि रुबाब भी वसीम से मोहब्बत करती थी, मगर घर वालों के डर से वो जुहान से शादी करने पर राजी हो गई थी। ये सुनकर दिलावर दंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि हकीकत कुछ यूं होगी। ये खबर वसीम तक पहुंच गई थी कि रुबाब की हालत ठीक नहीं। जब उसे ये बात मालूम हुई, वो अजियत की इंतहा पर था। फूट फूट कर रोता था कि ये उसके किए की सजा थी। उसने जुहान को मार डाला, अपनी बहन को नहीं बचाया, और यूं उसे भी सजा मिली कि उसकी मोहब्बत उससे छीन ली गई। वो सदमे में सिर्फ अपने कमरे का होकर रह गया। दूसरी तरफ ज़मीने पर दिलावर ने भी जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उसका कहना था पहले ज़मीने के भाई की वजह से जुहान की जान गई और अब उसकी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसने गुस्से में ज़मीने को अपने कमरे से धक्का दिया। उसके सामने उसकी माँ ज़मीने को मारती थी, गुस्से में स्टोर रूम में बंद कर देती थी, उसे भूखा रखती थी। दिलावर उसे स्टोर रूम में सुलाता था। उसकी मौजूदगी वो अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करता था। यूं ही 1 साल बीत गया और ज़मीने सबके जुल्मों सितम से निढाल हो गई। बीजान आज खुद दिलावर के कमरे में आई। दिलावर, ज़मीने को तलाक दे दे। जो सलूक तेरा उसके साथ है, उससे बेहतर है कि तू उसे छोड़ दे। आज तू किसी की बहन पर रहम कर, अल्लाह तेरी बहन पर भी रहम करेगा। बीजान की बात सुनकर वो लाजवाब हो गया। बस तू मुझे बता, इस कमउम्र लड़की का क्या कसूर है? क्या इसने उकसाया था वसीम को जुहान के कत्ल पर? रुबाब को इसने धक्का दिया था सीढ़ियों से? एक सच है जो इतने सालों से छुपा हुआ है। मैंने सोचा आज तुझे बता दूं, शायद तू कुछ सीख ले उससे। तेरी माँ भी इस घर में कम उम्री में वनी होकर आई थी। वो इस वक्त 13 साल की एक बच्ची थी। उसके भाई ने भी मेरे बेटे को मार डाला था, मगर तू जानता है मैंने क्या किया? मैंने उसको इज्जत से घर में जगा दी। उस पर किसी को हाथ नहीं उठाने दिया। उसे उसके घर छुपके से भेज दिया और जब वो 18 साल की हुई तो उसे रुखसत करवा कर ले आई। मैंने तो तेरी माँ पर जुल्म नहीं किया, ना किसी को करने दिया। फिर तू बता, तू किस हक से मेरी बेटी हिना की बेटी पर जुल्म कर रहा है? बता, क्या मैं भी आज से तेरी माँ और तुझ पर जुल्म करूं? क्योंकि तेरी माँ भी तो वनी में आई है। बीजान की बातों ने दिलावर के रहे सहे होशो हवास भी खत्म कर दिए। जो राज कई सालों से दफन था, आज बीजान ने उसे दिलावर के सामने निकाल कर खोल दिया। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। बीजान, आप दुरुस्त कह रही हैं, मुझे माफ कर दें। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था। इतना बड़ा दर्दनाक सच जानने के बाद
वो यकलख्त रोते हुए बीजान की गोद में अपना सर रख गया। बीजान ने अपने आंसू पोंछे थे। दिलावर ने तहैया कर लिया था कि वो ज़रमीने पर कोई जुल्म नहीं होने देगा। वो इज्जत से ज़रमीने को अपने कमरे में लाया और अपने रवैये पर नादिम होकर माफ़ी मांगी। आपको एहसास हो गया दिलावर साईं, हम बहुत खुश हैं। हमने आपको माफ़ किया। आप हमें मामा और बाबा से मिलवा लाएंगे? मासूम सी ज़रमीने ने उसे फरमाइश की तो वो ईजाब में सर हिला गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो बदल जाएगा। उसने दिल से ज़रमीने को अपनी बीवी तस्लीम कर लिया था। बीजान की बातों ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। रफ्ता रफ्ता बीजान और दिलावर की कोशिशों से घर वाले भी काफ़ी हद तक ज़रमीने को कबूल कर चुके थे। जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो घर में काफ़ी रौनक आ गई। हम इसका नाम जोहान रखेंगे। ज़रमीने की बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए। उन्हें तवक्को नहीं थी कि ज़रमीने इस कदर रहमदिल निकलेगी। जिस शख्स के कत्ल पर उसे वनी करके लाया गया, उस पर जुल्म किए गए, आज वो अपने बच्चे को उसी शख्स का नाम दे रही थी, सिर्फ इसलिए कि शायद इस तरह उन लोगों के जख्म भर सके। जहां उसकी जिंदगी सुकून में आ गई थी, वहीं वसीम हिजर की आग में जल रहा था। दिन रात अल्लाह के आगे रोता और माफिया मांगता था कि उसने बहुत से गुनाह किए हैं। रुबाब की सेहत के लिए भी वो रोता था। बिलाखिर 5 साल के तवील हिजर, अजियत और दुखों को झेलने के बाद उसकी दुआ कबूल हो गई। रुबाब को पूरे 5 साल बाद होश आ गया और उसकी हालत खतरे से बाहर थी। जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो सब बहुत खुश थे। आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ याद आ रहा था। वसीम, जब उसे आखिरी मंजर याद आया कि ताया ने उस पर पिस्तौल तानी हुई थी, तो उसने सिसक कर वसीम का नाम पुकारा। दिलावर ने अपनी बहन का हाथ थामा। रुबाब, मैं तुम्हारी शादी वसीम से कराऊंगा। दिलावर की बात सुनकर वो हैरान रह गई। दिलावर ने घर वालों को मना लिया था। अब चूंकि काफी साल गुजर गए थे और मामला ठंडा पड़ गया था, इसलिए सब लोग रुबाब की शादी पर राजी हो गए। हिना बेगम को माफ करके हवेली बुला लिया गया था। आज वसीम और रुबाब का निकाह था। निकाह के बाद वसीम फूट फूट कर रो रहा था। उसे इसके किए की सजा भी मिल चुकी थी और तहज्जुद में रोना और अल्लाह से करीब होने का खूबसूरत सिला भी मिल गया था। उसने रुबाब को शिद्दत से अपने गले से लगाया। उसके बाद वो अपनी बहन के पास आया और उसे भी गले से लगाया था। कई साल बाद एक तवील अरसे की लड़ाई सुलह में तब्दील हो चुकी थी और सब लोगों को यकीन आ गया था कि असल खूबसूरती माफ करके मिलजुल कर रहने में है। अदावत रखकर दूर रहने में सिर्फ नुकसान है, जिसका एहसास इंसान को किसी न किसी उम्र में आकर ज़रूर होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।